Hello everyone. I am back again with a wonderful video where I am dealing with the conditional series for you guys. In my previous video, I have already given you a disclaimer on what exactly a conditional is and what are the types of conditionals you are going to encounter and what that one particular conditional stands for. Also, I have catered to what are the topics you need to be proficient of whenever you are going to deal with this topic of grammar. Now let's move ahead and let's see what exactly the another type of conditional looks like. Today we are going to talk about zero conditional, which is the very first kind of conditional in the grammatical topic. So over here, what we have is, we have zero conditional. It is used to express few things. Now what are those? The general truth, scientific facts, habit, rules. So basically, it describes a situation where one thing always follows the another. The result is certain whenever the condition is met. So if you're not able to understand, let me help you out over here a bit on the clearer side. So basically zero conditional, आप ऐसे समझो, is when we use to present a general truth or you can say, अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने previous video में भी आपको बताया है, whenever we are going to talk about the universal truth or the universal fact or scientific fact, there we are going to use zero conditional. ठीक है, so this is what the usage of these zero conditional is. तो याद रखना, based on general facts, scientific facts, habit and rules at the same time. ठीक है, talking about it further, structure, how exactly the structure of zero conditional is. Now I'm going to dive a bit deeper on the detailings of the conditional. अब एक बारी ध्यान से इसको सुनना, that how from here we are going to deal with the tenses that are involved in it, the kind of punctuation marks or what kind of clauses that are involved in it. Also make sure to take care of the action that needs to be taken and the outcome that's there. ठीक है, so बात करते हैं अब if के साथ आएगा present simple and present simple. अच्छा, present simple, इसके साथ साथ I would also be telling you कौन सा form of verb लगेगा, how you need to make sentence with respect to that. I'll tell you everything. If present simple and present simple, both the condition and the result use is present simple tense. अगर मैं आपको simple present tense का structure अकेले दे दूँ तो it goes or it stands like, आपका आ जाता है subject. Subject के साथ you will be using verb की first form and आपका आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इसके साथ आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. सो सॉरी, इट्स नॉट, नाउ आई एम नॉट गोना मेक एनी मिस्टेक. ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसके साथ आता है आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रक्चर फॉर योर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आप यूज करते हो. अब ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इन द कंडीशनल. अगर हम इसका एक पूरा स्ट्रक्चर, हाँ देखो यहाँ पे इट्स ऑलरेडी रिटन. इफ सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल. इफ यू हीट वाटर इट बॉयल्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन भी देखते हो तो वहां पे भी हम यही बताते हैं कि जब भी हम किसी जनरल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट या हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, विच इज डायरेक्टली इंक्लाइंड ओवर हियर. तो अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन पता होगी तो यू वोंट बी एबल टू फेस एनी प्रॉब्लम, यू वोंट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम व्हाइल डीलिंग विद जीरो कंडीशनल. ठीक है, तो अगर इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो वो उबलेगा. दिस इज व्हाट अ नॉर्मल सेंटेंस लुक्स लाइक इन अ प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ द पिंच ऑफ कंडीशनल. ठीक है, ये हो गया. एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हीटिंग वाटर ऑलवेज कॉजेज इट टू बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस. इट्स a scientific fact and not a possible or a possibility or imagination. Of course we are not talking about any imagination. अगर हम एक habitual actions की बात भी करेंगे या हम एक if I wake up early in the morning, I will reach the office on time. So basically this is, I will reach office on time. So this is what the exact situation of a habitual action looks like, which is again in its simple present tense. तो अगर मैं इसको थोड़ा और bifurcate कर दूँ तो इसी structure को आप देखोगे, बस इसके आगे आपको if लगा देना है. if के साथ आपको ये simple present tense का structure follow करना है and there you go. There you have the zero conditional sentence, grammatically correct with all the things that you need to cater to. सारी
चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अगर हम बात करते हैं और एग्जांपल्स के लिए फॉर यू गाइज, इफ यू आर नॉट गेटिंग अ हिंट ऑफ इट, सो या हियर इट इज। इफ यू टच फायर इट बर्न्स यू। ऑफ कोर्स अगर आप आग में हाथ डालोगे तो ऑफ कोर्स वो आपके हाथों को जला देगा, ये काम नहीं करना है, ठीक है। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। इन द प्रीवियस सेशन यू माइट नोटिस मैंने ये एग्जाम्पल ऑलरेडी दे रखा है, मुझे बताना वेयर इट इज। Okay, now if you freeze water it becomes ice, of course. So yes, if you don't water plants they die. If you press this button the machine starts, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, तो अगर आपने सारे एग्जाम्पल्स पे ध्यान दिया होगा तो यू माइट नोटिस दैट आई हैव मेजरली टेकन दोज एग्जाम्पल्स और सेंटेंसेस विच आर वे टू कॉमन एंड वे टू easy to understand, and they are either talking about the habitual action, or they are talking about a general sense of the entire situation or a scientific fact, ठीक है। तो this is how I mean, this is what I mean when I'm going to talk about the entire situation or the entire sentence framing of zero conditional. Simply अगर इसको वापस से मैं रिवाइज करूं, I know it's way too easy to understand but I have to repeat it again because I want to make you guys revise, because रिवाइज तो करोगे नहीं तुम लोग, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, रिवाइज नहीं होगा तुम लोगों से, बट इसलिए इट्स माई ड्यूटी, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अवेयर ऑफ इतना अच्छे से इस टॉपिक को, सो दैट आप उसको भूलो ना, ठीक है। क्या करना है हमें, क्या करना है, इफ लगाना है, इफ के साथ हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, अगर मैं इसको और प्रिसाइज कर दूं उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड देन अगेन यू हैव टू यूज सब्जेक्ट एंड द सेम थिंग विल मूव ऑन। दिस इज हाउ द एंटायर सेंटेंस शुड लुक लाइक। फर्स्ट, सेकेंड, अब यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी आ रही है। अब क्वेश्चन आएगा कि मैम क्यों आता है, देखो तो टेंसेज में तो मैंने बताया है, बट अगर टेंसेस नहीं देखा है तुम लोगों ने तो एक बार वापस से बता दे रही हो, तो सो दैट एक बार देख लेना, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी सो आई एम डूइंग इट। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है ना, ये आती है आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क्स विद द प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो बेसिकली अगर हम वी और दे की बात करते हैं तो यहाँ पे लेट मी जस्ट राइट इट डाउन प्रॉपर्ली सो दैट you guys can have a clear look. Okay, so basically if we are talking about we, they, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं V1 की विच इज बेस फॉर्म की। फॉर एग्जाम्पल हाँ, सॉरी यहाँ पे अगर हो जाएगा वी गो, दे गो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स प्लूरल है तो यहाँ पे यू भी आएगा एंड आई भी आएगा, ठीक है। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स वेयर यू कैन यूज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एंड देन अगर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करें जो कि होता है SNES फॉर्म, उसको हम कहाँ यूज करते हैं, बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल ही एंड शी एंड इट, ही शी इट के साथ हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही गोज, शी गोज, इट गोज, ठीक है। दीज आर द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जहाँ पे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज करते हैं। अगेन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम SNES यूज करते हैं। आप जो भी बोलोगे, वट एवर फील्स बेस्ट टू यू, यू कैन स्पीक। कंफ्यूज मत होना कि ये कुछ अलग से मैम पढ़ा रही है, मैम कुछ अलग नहीं पढ़ा रही है, मैम वही सेम चीज पढ़ा रही है, जस्ट दैट इट केटर्स टू अनदर काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, और यू कैन से कि जिस हिसाब से यू देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु केटर टू इट इन डिफरेंट मैनर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स टू रिमेंबर के बारे में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद जीरो कंडीशनल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पे लिखा है द इफ क्लॉज डिस्क्राइब्स द कंडीशन। क्या कंडीशन मतलब शर्त, कंडीशन का मतलब यहाँ पे सिनेरियो की बात नहीं हो रही है, हम शर्त की बात कर रहे हैं कि अगर हमने किसी सेंटेंस में इफ यूज किया है तो मतलब हम शर्त की बात कर रहे हैं कि अगर ये काम करोगे तो ही ये काम होगा। शर्त लगा लो, अगर तुम हार गए तो तुम मुझे क्या दोगे, ठीक है। या शर्त लगा लो कि अगर तुम हार गए तो तुम मुझे 500 रुपए दोगे, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स नाउ। सो बेसिकली द मेन क्लॉज डिस्क्राइब्स द गारंटीड रिजल्ट। ऑफ कोर्स लाइक अगर मैंने बोला ना अगर तुम जीत गए या अगर तुम हार गए तो तुम मुझे ये दोगे, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू, आई एम जस्ट गिविंग यू अ गारंटी कि ये तो होना ही है, बट ये होने के लिए
जो हमारा पहला वाला जो इनिशिएशन है वो कैसा होगा, डिपेंड्स। तो हमारा इनिशिएशन पे डिपेंड करेगा हमारा आउटकम या रिजल्ट कैसा होगा। नो फ्यूचर टेंस विल वुड शैल इज नॉट यूज्ड इन जीरो कंडीशनल्स, याद रखना। यू कैन ऑल्सो रिवर्स द ऑर्डर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, सो द ग्राउंड गेट्स वेट इफ इट रेन्स अगेंस्ट। तो बिकॉज बेसिकली हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप इस सेंटेंस को रिवर्स भी कर दोगे तो दैट्स नॉट गोना चेंज द मीनिंग। एंड ऑफ कोर्स द मीनिंग अगर चेंज नहीं हो रही है तो डेफिनेटली यू आर नॉट रॉन्ग एनीवेयर, you are making a grammatically correct sentence. So yes, this is how it works. ठीक है, अब कॉमन यूज केसेस देख लेते हैं, कौन कौन से कॉमन यूज केसेस होने वाले हैं हमारे पास। तो साइंटिफिक फैक्ट्स, नेचुरल लॉज, हैबिट्स एंड रूटीन, इंस्ट्रक्शंस और रूल्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू डोंट एक्सरसाइज यू लूज strength, and if you add sugar to tea, it tastes sweet. So this is a natural reaction for a student, so natural reaction of a person whenever they are going to cater to this situation. So yes, basically these are also some of the factors that are included जब भी हम zero conditionals की बात करते हैं. Now let's have a quick exercise on zero conditional so that हम इसको और अच्छे से जान पाएंगे. अब चलो मुझे बताओ जरा कि if you dash क्या लिखा हुआ है. सो बेसिकली हमारे पास है इफ यू डैश मेटल, ब्रैकेट में हमारे पास हीट लिखा हुआ है, इट एक्सपैंड. अब मैंने क्या बताया था, अगर हम ध्यान से एक बार फिर से स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर है इफ के बाद हमारे पास है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास V1 एंड देन V5 डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, इसके साथ साथ फिर हम एक सब्जेक्ट और ऐड करेंगे, उसके साथ हम एक सब्जेक्ट और ऐड करके फिर आई एम सो सॉरी नहीं वेट, ठीक है, इसके साथ फिर हम यही सेम स्ट्रक्चर ऐड करेंगे, सब्जेक्ट के साथ V1 एंड V5 एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये एक हो गया आपका इजी सा स्ट्रक्चर. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इजी तो नहीं है, बट स्टिल इट्स वे इजी. मेरे को लाइक आई हैव टू राइट इट इन दिस एक्सपैंडेड फॉर्म फॉर यू गाइस, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. चलो, इफ आ गया, इफ यू सब्जेक्ट आ गया, हीट है यहाँ पे तो प्रेजेंट टेंस में लगाएंगे. इफ यू हीट का हीट आ जाएगा. इफ यू हीट मेटल इट एक्सपैंड. अब बात ये आ रही है कि मैंने बताया था सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा जो ये जो वर्ब है वो चेंज होगा. तो अब हमारा वर्ब क्या है, अब हमारा वर्ब सिंगुलर है, तो मैंने क्या बताया था, सिंगुलर वर्ब के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं. जस्ट टू एक्सप्लेन यू, इट है तो इट के साथ यहाँ पे एक्सपैंड आएगा, तो एक्सपैंड तो आएगा ही आएगा, बट एक्सपैंड नहीं आएगा, एक्सपैंड्स आएगा ओवर हियर. एस या ES वाला वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, टू विच दिस इज हाउ अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस यू आर गोइंग टू फ्रेम. ठीक है, सेकंड बात करते हैं. इफ people not drink water they become dehydrated. अब यहाँ पे बात हो रही है if people, यहाँ पे देखो पहले सिंगुलर है कि प्लूरल है. अब if people not drink, अब हम इसी को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, do not. या तो हम इसको लिखेंगे do not, या तो फिर हम इसको don't लिख देंगे, सिंपल. if you want to use an abbreviation, fair enough, go for that, but use it. If people do not drink water, they become, अब हाँ, they become dehydrated. become ऐसे ही आ जाएगा, they become dehydrated. Clear? बढ़िया, ऑल गुड. चलो, नेक्स्ट टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग. इफ अ डॉग, अब यहाँ पे हमारा जो डॉग है वो हमारा सिंगुलर है, तो सीज है यहाँ पे, सॉरी सी लिखा हुआ है. इफ अ डॉग सीज अ स्ट्रेंजर इट यूजुअली बार्क. अब यहाँ पे इट है और हमारा बार्क जो है वो हमारा वर्ब होने वाला है, तो वर्ब हमारा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा बार्क्स. ठीक है, टॉकिंग अबाउट इट फर्दर. इफ यू ड्रॉप अ ग्लास इट ब्रेक. सो बेसिकली इफ यू ड्रॉप, यू है, यू के साथ आ जाएगा ड्रॉप अ ग्लास it breaks is again the plural verb, sorry हाँ, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हो जाएगा. इफ यू मिक्स, इफ यू है, यू के साथ सिंगुलर आएगा. मिक्स रेड एंड ब्लू, यू
you, again you है हमारा subject, तो यहाँ पे जो verb आएगा वो आएगा get. So this is how your zero conditional is going to look like before you, it's going to look like after you have properly studied it. And there you go. Here is your answers. So here are your answers, and this is what exactly I have written. So if you want to refer to it, please refer to it. And yes, to all those people who wants to get access to the DPPs and the notes that will be attached to the application, make sure you follow these steps. This is how the interface is going to look like, so that you can refer, take the DPPs and solve the questions, so that you can gain the confidence that you are looking for. Okay? And yeah, that's all. Thank you so much everyone. Thank you so much for being here. It has been a wonderful session. We'll see you in the next session. Till then, take care. Bye-bye.